Good morning, friends. This is Gajendra Kuthari, and we welcome you to this third episode of One Idiot with the Masters. We started this series 2 months back with Nilesha as the opening speaker. And the idea of these sessions are simply to educate our investors, audience, because we believe investing is a long-term journey, it's a marathon. And आप लोग सब हम पे ट्रस्ट करके पैसा तो डालते हैं, बट the idea is if you also are aware कि हम क्या कर रहे हैं, and that will make your journey far more easier rather than just blindly trusting the advisor, because this is a journey where we always tell our investors that it's like a car that we both are driving. You have steering in your control, we are your navigators. तो कंट्रोल आपके हाथ में, तो आपको 50-70% जॉब इज योर्स. सो अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट गेम वी आर प्लेइंग, it will be very difficult to survive or play this game in a right way for the next 10-20 years. So this third session is very, very special. First, those sessions were more technicals. This one is more behavioral. I believe today this is the real edge that we all investors can have. And who other than Ashish Somaya, who has seen this industry from various lenses and has been a veteran. He's someone who we all at Team Etica respect a lot for his independent views, for his very simple views, yet very profound. If I were to summarize him in one word, he's a rock star of our industry because he's young, dashing, one of the very youngest CEOs who rose from ranks right from as a management trainee when I think he did in his MBA, if I'm not wrong. He joined as this industry, this wonderful industry. And there are a lot of parallels to Ashish's journey and our journey. Of course, Ashish has always remained in the AMC industry. I joined UTI Mutual Fund for 7 years, and then I felt there was a big last mile gap there, and I came to the distribution side. But we have all seen Ashish's meteoric rise with very like a ringside view. So I don't want to bore you with his official CV. It's pretty long, but all I can tell you, I've heard him. We all at Team Etica have heard him hundreds of times. बट जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बात बताई है, मतलब वो आइडिया जल जाती है. आई एम श्योर आज भी आप लोग बहुत सारे लोग सुने हुए होंगे आशीष को एट वेरियस फोरम्स, बट आज भी आपको लगेगा कि सर जी ने क्या, व्हाट एन आइडिया सर जी आपने जो दिया हमें. सो आशीष, विद दिस ओवर टू यू. वी हैव एन ऑडियंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड. सो द फॉर्मेट विल रिमेन की 40-45 मिनट्स आप बात करें, और उसके बाद जो पब्लिक के क्वेश्चंस है उनका हम आंसर करेंगे. यू कैन यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी सो दैट वी आर एबल टू काइंड ऑफ एड्रेस ऑल आवर व्यूअर्स. Sure. पूरा दिल से बात कीजिए सर, ऑल ऑल ओपन टू यू. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Gajendra, Nikhil, Vaibhav, Chintan, entire, team at Etica Wealth. Uh, Thank you for, organizing this. And मुझे invite करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And Etica Wealth के सारे जो clients हैं, followers हैं, आप सभी सैटरडे मॉर्निंग अपना समय निकाल के कॉल पे आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और क्योंकि ये अभी पिछले हफ्ते जो हम लोग सब दिवाली मनाए हैं, सो एट द सेम टाइम आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दिवाली. And I hope that the new year brings along for you everything that you wish for. So what I'll do is that जो मुझे टॉपिक बताया गया है वो एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है. आई फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो जो टॉपिक मुझे बताया गया है वो ये है कि भाई, जब हम लोग निवेश करते हैं, व्हेन वी इन्वेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियरल बायसेस, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हेन वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग. आमतौर पे मोस्ट इन्वेस्टर्स थिंक दैट जब इन्वेस्टिंग की बात होती है तो इसमें बहुत सारे ग्राफ्स होंगे, बहुत सारे चार्ट्स होंगे, बहुत सारा मैथ्स, बहुत सारा साइंस. अगर आप जैसे, आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ यू वंस इन अ वाइल यू ओपन टीवी, यू सी बिजनेस टेलीविजन. और बिजनेस टेलीविजन जब आप खोलते हैं
चाहे कोई सा भी चैनल आप देखिए, जी बिजनेस देखिए, CNBC देखिए, NDTV देखिए, ET देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स, एनी बिजनेस चैनल और एनी ऑफ द चैनल्स दैट यू सी, तो हम सब लोगों को भी बुलाया जाता है वहाँ पे। मार्केट को लेकर के काफी चर्चा होती है, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स, आर्थिक व्यवस्था में क्या हो रहा है, रिजर्व बैंक की पॉलिसी में क्या हो रहा है, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन इट कम्स टू इट्स बजट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बहुत सारी चीजों पे चर्चा होती है, हम सबको बुलाया जाता है। लेकिन आप देखिए, जितनी बार बिजनेस टेलीविजन आप देखते हैं, तो एक छोटी खिड़की में जो हमको इंटरव्यू करते हैं वो होते हैं, एक छोटी खिड़की में हमको बिठाया जाता है। बाकी पूरा जो स्क्रीन है, पूरे स्क्रीन पे कोई ना कोई नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नीचे एक टिकर चल रहा है, जहां पे हमारा चेहरा है उसके बाजू में कोई ना कोई चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या है कि ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का जो मामला है, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी सही है। लेकिन कुल मिला के जो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट का मामला है, उसको बिल्कुल ही गणित और विज्ञान, मैथ्स और साइंस, और कभी कभी तो क्या होता है, जैसे टीवी पे बहुत ही स्मार्ट लोग, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट विद बिग रैंक, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 2 3, ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, या कोई IIT IIM, बहुत ही स्मार्ट लोग टीवी पे आते हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझाते हैं। हम भी आते हैं, हमने भी इंजीनियरिंग किया है और MBA किया है, लेकिन इससे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग टीवी पे आते हैं, और जब भी कुछ हो जाता है तो आपको समझाते हैं कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में। और जब दुनिया में कुछ समझाते हैं तो बात ऐसे होता है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये अगर आज हमारे साथ टीवी पे नहीं बात कर रहे होते तो जरूर ये रॉकेट चला रहे होते। इस तरीके का, इट इज बीन पोर्ट्रेड एज इफ इट इज लाइक ए हाई साइंस एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स। देखिए, कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बायसेस की अगर आप बात करते हैं, तो जब मैं, क्योंकि मुझे सारे बायसेस पता है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल नेम्स हमको नहीं पता होते, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था आज के सेशन के लिए, एक बायस के बारे में मैंने पढ़ा जिसको बोलते हैं साइंटिज्म। इट इज SCIENTISM, साइंटिज्म। उसका मतलब ये है कि भाई, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज का जवाब, मार्केट के, इकोनॉमिक्स के हर चीज का जवाब मैथ्स और साइंस में है, उस बायस को बोलते हैं साइंटिज्म। मतलब कि आप समझते हैं दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वे ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स काइंड ऑफ प्रोसेसेस। अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप कहीं ना कहीं पे ये साइंटिज्म का शिकार है, क्योंकि आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि पिछले 20 साल में इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है, देखिए इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है, हम लोग शेयर बाजार की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है, ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, ये सब डायरेक्टली अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और जो लोग समझते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा मैथ्स और साइंस और ग्राफ्स और चार्ट्स है, उनको ये याद रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है, वो भी पिछले 20 साल में 2 बार ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करने वाले को दिया गया है। राइट। जो लोग हम लोगों को इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, रिजर्व बैंक की पॉलिसी, गवर्नमेंट का बजट, ये सब इकोनॉमिक्स जो हमको सिखाया गया है, उसको रखिए साइड पे। पिछले 20 साल में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है, वो आपको क्यों लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करने वाले को दिया होगा? क्योंकि ये ऑब्वियस है कि जितना हमको लगता है कि इसमें ग्राफ्स और चार्ट्स और मैथ्स और साइंस है, उतना एक्चुअली है नहीं। ज्यादा योगदान इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का ज्यादा योगदान है। इसीलिए जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जब भी हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर से बात करते हैं, जब हम खुद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमको अपने माइंड में कौन से बायसेस शायद प्ले हो रहे हैं, उसके बारे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर कॉन्शियस अबाउट इट। So there are few things that I'm going to speak about it, which I want to share with you. I hope you can see my screen. So these are 5 6 things which I want to speak to you about. सबसे पहला चीज जो मैंने बोला, जो मुझे लगता है, मतलब नॉर्मली स्पीकिंग आई एम क्वाइट श्योर आपने बिहेवियरल बायसेस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैंने काफी, जो बायसेस मुझे समझ में आते हैं या जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ लोगों को मिलने के बाद,
उसके ऊपर होमवर्क करके रिसर्च करके मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वन है, वो सबसे पहला वाला है कि लोग भूल जाते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने वाले को दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डिसीशंस में सबसे ज्यादा योगदान एक्चुअली इमोशंस का होता है, मैथ्स और साइंस, नंबर्स और चार्ट्स का नहीं होता है। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, देखिए क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस और नॉट, बट द स्टॉक मार्केट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग लाइव एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। सो आई रिपीट दैट फॉर यू, स्टॉक मार्केट जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट रनिंग लाइव एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ये मैंने क्यों बोला, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है, वी नीड सर्टेनिटी, जिसको हम बोलते हैं वी नीड कॉग्निटिव क्लोजर। इसका क्या मतलब है कि मैं दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है, चाहे हमारे साथ हो, चाहे हमारे नेबर के साथ हो, चाहे हमारे परिवार में कुछ हो, चाहे ऑफिस में कुछ हो, चाहे दुनिया में कुछ हो, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ बायस वेयर बाय वी नीड क्लैरिटी। मतलब कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब देखिए, पिछले 5 साल जो है वो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रहे, क्योंकि मार्च 2020 में कोविड हुआ। एक्चुअली मार्च 2018 से ही कुछ ना कुछ, मतलब 2016 में डिमोनेटाइजेशन, 2017 में जीएसटी, 2018 में बड़ी एक संस्था थी आईएलएफएस, वो डिफॉल्ट हो गई। उसकी वजह से इंडिया में क्रेडिट क्राइसिस हो गया। तो अब देखिए येस बैंक, डीएचएफएल, ऐसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, काफी संस्थाएं तकलीफ में आ गई। उसके बाद कोविड हुआ। कोविड के बाद उसका जो भी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, वहां से निकले तो यूक्रेन में वॉर हो गया। उसके बाद इसराइल और हमास, यूएस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सिलिकॉन वैली बैंक वो डूब गया। इंडिया में इलेक्शन हुआ, लोग सोचते थे 300 आएगा, 240 हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट। उसके बाद सो पॉइंट इज दैट लास्ट 5 to 6 years इज कंटिन्यूसली बीन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग पीरियड। अब क्या होता है, ये बहुत फनी सिचुएशन है कि भाई जब भी कोई चैलेंजिंग चीज होती है, समझो अभी फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प साहब का चाइना में मीटिंग हुआ, चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, टैरिफ कम होगा, इंडिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, टैरिफ कम होगा। अगला ट्रम्प साहब कौन सा ट्वीट करेंगे, हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा? सो व्हाट हैपेंस इज दैट एवरी टाइम सम और द अदर इवेंट्स आर हैपनिंग। जब ये इवेंट्स होते हैं तो जो ये कॉग्निटिव क्लोजर जो मैंने बोला, जब ये इवेंट्स होते हैं तो उससे अनसर्टेनिटी होती है, यार भाई ऐसे कैसे हो गया, राइट? तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो हम सब जवाब ढूंढने को निकल जाते हैं कि भाई अरे बताओ क्या हुआ। आप निखिल जी से बात करेंगे, गजेंद्र से बात करेंगे, चिराग, चिंतन से बात करेंगे, उनको पूछेंगे भाई क्या हो गया, व्हाट इज रॉन्ग। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2022 में जनवरी में मार्केट पीक हुआ, उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, गजेंद्र, यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस्ड, 2020 में वॉर जब हुआ, मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। मतलब उसके पहले निफ्टी हाईएस्ट पॉइंट पे 18,500 कुछ था, मई 2022 आते आते गिरते गिरते 15,200 तक आ गया। करेक्ट? सो मार्केट गिरा तो सब पूछते हैं एक दूसरे को, और टीवी टीवी भी थोड़ा ज्यादा देखते हैं ना लोग जब तकलीफ होती है तो समझो कि मई 2022 है, आपने टीवी खोल के देखा, भाई क्या हो गया, अभी तो सब बोल रहे थे। क्योंकि क्या है, जब कोविड आया तो आप टीवी खोल के देखते हो, कोविड में क्या बोलेगा कोई, अरे भाई सब घर में बैठे हैं, ऐसा लगता है अभी हम ही लोग डायनासोर बनने वाले हैं, दुनिया खत्म हो जाएगा। वैक्सीन बनने को तो 10 साल लगता है, वैक्सीन कैसे मिलेगा, तो सारे बिजनेस चौपट हो जाएंगे, बैंकें बंद हो जाएंगी। तो ऐसा बोल के गिरा। अभी समझो फरवरी 2020 में आपको कोई बोलता कि देखो अभी है ना कोविड आएगा, उसके बाद है ना आप सब लोग 3-4 महीना घर में बंद हो जाएंगे और शेयर बाजार 40% गिरेगा, ऐसा आपको फरवरी 2020 में कोई बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, पूरा पोर्टफोलियो बेच के घर पे बैठ जाएंगे? तो उससे आपको 3-4 महीना खुशी होएगा, 6 महीना में तो मार्केट न्यू हाई बना रहा है। तो पहले तो आप बोलेंगे कि अरे भाई वो किसने बताया था कि फरवरी 2020 में किसने बताया था मार्केट गिरा, उसको पहले ढूंढ के लाओ, उसको बोलो तुम यार, यू नो निकलने का तो बोला, एंट्री कब लेने का था वो तो बोला ही नहीं, तो बाहर रह गए मार्केट से। सो कोविड में ना अगर आप टीवी खोल के देखते तो आपको सब डराते कि तो यार मतलब 1918 में देखो स्पेनिश फ्लू आया था, फिर देखो क्या हो गया, 5 मिलियन लोगों की जानें चली गई। 1992 में सूरत में प्लेग आ गया था, फिर देखो क्या हुआ। 2003 में हांगकांग में सार्स वायरस आ गया था, देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, तो आप डर जाएंगे।
फिर क्या होगा, नवंबर 2020 में मार्केट न्यू हाई बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। अभी को कोविड में 8,700 निफ्टी था ना, वो अक्टूबर 2021 में 18,500 निफ्टी हो गया। तो आप फिर टीवी खोलेंगे, आजू बाजू में देखेंगे, बोले न्यू हाई हो गया, अभी पैसा लगाने का क्या करने का। सो यू ओपन द टीवी इन अक्टूबर 2021, सो समबडी विल टेल यू हमारा अमृतकाल आने वाला है। तो आप बोलेंगे यार कैसा स्कीजोफ्रेनिक लोग है यार तुम लोग, अभी बोल रहा था दुनिया खत्म होने वाला है, अभी अक्टूबर 21 में आ गया तो बोलते हैं अमृतकाल आने वाला है। सो ठीक है, अमृतकाल आने वाला है। फिर थोड़े दिन बाद आप देखें कि मई 2022 में अमृतकाल का बात चल रहा था, वो 18,500 का हो गया 15,200। तो आप फिर देखेंगे क्या हो गया, टीवी खोलेंगे, टीवी में क्या बात हो रहा है। हाँ बराबर है, अमृतकाल आएगा बोला था बराबर है, लेकिन अभी तो वॉर हो गया ना, तो वॉर हो गया तो देखो तेल का दाम $129 हो गया है, कोयला मिलेगा नहीं, एनर्जी मिलेगा नहीं। तो लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू वांट एक्सप्लेनेशन कि अरे भाई ठीक है, मेरा 10 रुपए का 8 रुपया हुआ, निफ्टी 18.5 का 15,000 हो गया, मेरा पैसे का वैल्यू गिरा, क्यों हुआ पता तो चले। सो यू वांट एक्सप्लेनेशन, व्हाई यू वांट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू नो। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मार्केट, आपका दोस्त से लड़ाई होता है, आपका फेवरेट एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, कुछ भी होता है, यू नीड एक्सप्लेनेशन, यू वांट सर्टेनिटी, ऐसा क्यों हुआ, यू वांट एक्सप्लेनेशन, राइट। सो 15,200 निफ्टी आया तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया उसका कि भाई क्योंकि यूक्रेन में वॉर हो गया, तेल और कोयला मिलेगा नहीं, तेल का दाम $129 हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया, आप बोले चलो ठीक है देखते क्या होता है। वो आपने एक्सप्लेनेशन ले लिया, अक्टूबर 2022 में आप देखेंगे ना 18,500 हो जाएगा निफ्टी फिर से। तो फिर देखेंगे अरे क्या हुआ, बोले हाँ वो बोल रहे थे लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर होएगा ऐसा बोल रहे थे, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं ना, और तेल का दाम भी 129 के बजाय फिर से $80 हो गया, तो इसलिए निफ्टी वापस 18,500। तो आप बोले अच्छा ठीक है, दिस इज गुड, ओके नाउ वी शुड गेट बैक टू विनिंग वेज। फिर आप देखेंगे मार्च 2023 में फिर से निफ्टी 16,600 पे आ गया। तो अब फिर टीवी खोल के देखेंगे क्या हुआ, तो बोलेगा एक सिलिकॉन वैली बैंक था अमेरिका में, वो डूब गया। बोले हम लोग क्या लेने देना सिलिकॉन वैली बैंक से, बोले नहीं वो उससे नया लेमन क्राइसिस हो जाएगा। तभी भी बेयर स्टर्न्स जेपी मॉर्गन ने खरीदा था, अभी भी देखो सिलिकॉन वैली बैंक जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया, अभी ये नया लेमन क्राइसिस बनने वाला है। तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया 16,600 का। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे फिर से 19,000 हो जाएगा, फिर 17,700 पे आ गया, फिर अभी क्या हो गया, अभी इसराइल और हमास का वॉर चालू हो गया, राइट। फिर सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरी टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू आर सीकिंग एक्सप्लेनेशंस and you are getting also perfect explanations, but don't forget all these explanations are after things happened, correct. There is no point in seeking explanation after something happens। ये पूरे चीजों से आपको एक ही चीज समझ में आएगा, that life is uncertain, the world is uncertain, and the bias which people have is that essentially we are seeking certainty in something which is essentially uncertain, and not only uncertain, which is probabilistic, right? So most important thing to keep in mind, जैसे सब लोग आजकल क्रिकेट देखते हैं, आपको क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा, आपको शायद ज्यादा ध्यान में आएगा। अगर मेरे को और गजेंद्र को, समझो आप क्रिकेट क्रिकेट देखते हैं, समझो T20 का मैच है, लेट अस से गजेंद्र इज द कैप्टन, आई एम द वाइस कैप्टन, एंड हम लोग का मैच यहाँ पे मुंबई में है, वानखेड़े में, करेक्ट। सो हम लोग अगर ऐसा करते हैं कि भाई मैच तो अपने को जीतने का है, correct? So let me give you an example of seeking certainty. I said that the biggest bias is to try to look for certainty in something which is essentially actually known to be uncertain, unpredictable and probabilistic। ठीक है, समझो हमारा T20 का मैच है इधर वानखेड़े में, तो मैं गजेंद्र को बोलता हूँ देखो भाई मैच वानखेड़े में है, तुमको तो मालूम है कि वानखेड़े में 200 रन तो कम से कम, मतलब बच्चा बच्चा कोई भी टीम है 200 रन तो मार ही देता है, तो बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वानखेड़े में। तो अपन एक काम करेंगे कि अपन है ना टॉस जीतेंगे, और टॉस जीत के अपन बैटिंग लेंगे, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, और अपन टॉस जीत के बैटिंग लेंगे, अपन ही सामने वाले को 400 रन ठोक देंगे। तो एक काम करते हैं, अपन है ना ये T20 का टीम में, सब टीम में 5-6 बैट्समैन, 2-3 ऑलराउंडर, 3-4 बॉलर, और विकेट कीपर हमेशा अच्छा बैट्समैन होता है। तो अपने को तो टॉस जीत के बैटिंग लेने का है, और ये वानखेड़े में तो स्कोरिंग इंपॉर्टेंट है, अपने को तो सीधा 400 रन ठोकने का है। तो एक काम करते हैं, अपन 9 बैट्समैन लेके जाते हैं। हाँ, ये सब क्यों इतना सब करने का है, 9 बैट्समैन लेके जाते हैं, टॉस जीतेंगे, अपन बैटिंग लेंगे, और अपन ही सामने वाले को 400 रन ठोक देंगे, करेक्ट।
अभी ऐसा करके, और फिर आपको पता है प्री मैच कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तो मैं, निखिल है वहां पे, मैं निखिल को पूछता हूँ, निखिल क्या लगता है तुमको मैच का क्या होएगा अभी? तो बताओ निखिल, गजेंद्र, क्या होएगा? ऐसा टीम बनाएगा कि भाई टॉस जीतेंगे तो अपन 400 रन मार देंगे सामने वाले को। फिर मैं आपको पूछता हूँ क्या लगता है यार, कल अपन जाएंगे मैच में तो क्या होएगा? तो क्या होएगा? व्हाट डू यू थिंक? ओवर कॉन्फिडेंस बायस मतलब वही कि बैटिंग लेना और पहले 400 रन बनाना है उस हिसाब से। सो एक्चुअली तो गजेंद्र, सबसे पहले क्या होएगा मालूम है? अपन टॉस हार जाएंगे। टॉस हार हाँ जाएंगे। वही, वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। सो क्या होएगा सबसे पहले? तो बोले बेटा क्या होएगा मतलब, क्या होएगा मतलब बेटा, खाली टॉस होएगा, मैच तो होएगा नहीं। क्योंकि और क्या है कि मर्फीज लॉ है एक, ऐसा टीम बनाएगा ना तो पक्का टॉस हारेगा। राइट? तो तुम जाएंगे मैदान में, सबसे पहले तुम टॉस हारेंगे। टॉस हारेंगे ना तो सामने वाला बैटिंग लेगा, वो तुमको 500 रन ठोक देगा सबसे पहले। करेक्ट? सो देखिए क्या है, there is a very objective reason why is it that all T20 teams have 5 to 6 batsmen, 2 to 3 bowlers, 2 to 3 all-rounders, 3 to 4 bowlers, and wicket keeper is always a good batsman. ऐसा टीम क्यों बनता है? क्योंकि भाई वानखेड़े का पिच, सबसे पहले तो वानखेड़े का पिच वानखेड़े जैसा बर्ताव करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी वो राजकोट या चेन्नई या मोहाली जैसा भी कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अपन टॉस जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। सो टीम किस लिए बनाया जाता है? पिच कैसा भी बर्ताव कर सकती है, अपन टॉस जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अपने ओपनर सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल भी होते हैं, सामने वाला टॉस जीत के बैटिंग भी ले सकता है, बॉलिंग भी ले सकता है। राइट? So how do you make a cricket team? You make a cricket team to cover all probabilities. You make a cricket team essentially understanding that the game is uncertain. Anything can happen. कभी भी कोई ऐसा टीम नहीं बनाता है कि अपन टॉस जीतेंगे, बैटिंग लेंगे, 9 बैट्समैन लेके जाते हैं। अगर क्रिकेट नहीं समझ में आता है तो आप फुटबॉल देखो, सॉकर देखो, उसमें भी 11 प्लेयर है, एक गोलकीपर होता है। उसके बाद 4-3-3, 4-4-2, ऐसा सब कॉम्बिनेशन रहता है भाई, 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर। या तो किसी का 4 डिफेंडर, 3 मिडफील्डर और 3 स्ट्राइकर। राइट? ऐसा कोई होता है कि 11 लोग, गोलकीपर भी छोड़ दो, सब लोग छोड़ दो, 11 लोग जाके अपन अटैक करेंगे? अरे भाई जैसे बॉल पोजीशन छूटेगा, सामने वाला तुमको 4 गोल ठोक देगा पहले। राइट? सो when it comes to a team, why do we make a balanced team? We make teams always knowing that the world is full of probabilities. कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? आई गिव वन मोर एग्जांपल। ये सर्टेनिटी का बात मैं कर रहा हूं। अपन कहीं भी जाएंगे आज के तारीख में, तो गजेंद्र आपको मीटिंग में, आई नो यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, बट व्हेन यू गो फॉर मीटिंग्स, लॉट ऑफ पीपल विल ऑलवेज से कि सर क्या लगता है मार्केट, ये ट्रम्प साहब का H1B पे भी मतलब रोक टोक लगा दिए है, इंडिया यार मतलब फ्रेंडली कंट्री है, 50% टैरिफ लगा दिया तो क्या होएगा? नाउ वी ऑल नो दैट व्हाई डू पीपल आस्क अस क्वेश्चंस अबाउट द मार्केट, बिकॉज इम्प्लिसिटली दे वांट टू नो कि भाई मेरा पोर्टफोलियो का क्या होएगा। ये सबका पैसा लगा है ना, तो पोर्टफोलियो का क्या होएगा, वो चिंता है, इसीलिए लोगों को मार्केट का चिंता है। नाउ लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। अपन गजेंद्र, व्हेन वी गो टू साउथ इंडिया, कोस्टल, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, एनी ऑफ द कोस्टल एरियाज, अपन क्या, जैसे कई बार जाते हैं अपन थाली मंगाते हैं ना खाने को। सो थाली मंगाते हैं तो आप विजुअलाइज कीजिए दैट व्हेन यू ऑर्डर अ थाली, इफ यू विजुअलाइज इट, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग यू सी इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द सेंटर ऑफ द थाली? मतलब देयर विल बी सम कंटेनर्स, वाटी बोलते हैं यहाँ पे, कंटेनर्स होते हैं, बीच में खाली जगह होता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं बीच में? पूड़ी, राइस या चपाती? राइस। राइट? साउथ इंडिया राइस, में, साउथ कोस्टल इंडिया एरियाज का में राइस। राइस होएगा, राइस होएगा। राइट? और कहीं पे साइड में ग्रीन चिलीज का अचार होएगा, चटनी होएगा, वो लाल मिर्ची का, वो सब होएगा। ऐसा थाली होता है, यू कैन विजुअलाइज, यू कैन इमेजिन। नाउ इमेजिन अ थाली जहां पे राइस के जगह पे चटनी और हरे मिर्च का अचार रख दूं मैं, और मिर्ची और अचार के जगह पे मैं राइस रख दूं। ठीक है? यू कैन विजुअलाइज, सब लोग आंख बंद करके सोचो ऐसा थाली कैसा लगेगा, कि जिसमें सेंटर में जितना राइस होना चाहिए उतना क्वांटिटी में, उसी जगह में ग्रीन चिलीज का अचार, और जहां पे चिलीज और चटनी होना चाहिए वहां पे उतने मात्रा में इतना सा राइस।
ठीक है, ऐसा। और फिर वो थाली मैंने कंज्यूम कर लिया, और फिर मैं आपको आके पूछता हूं क्या लगता है कल क्या होएगा मेरे साथ, तो क्या जवाब देंगे आप? हम बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप थोड़ी बोलेंगे कि मुंबई का पानी में अमृत है बेटा, डर मत, तेरे को कुछ नहीं होएगा, तू थोड़ा पानी पी ले सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। Correct, तुमसे बेटा तू मेरे को क्या पूछ रहा है, तू खाया इतना, मतलब यू आर ईटिंग ऑल दिस, व्हाट आर यू आस्किंग मी, क्या होएगा, correct. राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट if you see our trends, if you see the market, now I'll show you some data which you will find it very very shocking. Like अभी है ना, everybody is very very worried about market, लेकिन रिस्क मार्केट में नहीं होता है, तुम क्या खा के बैठे हो उसमें रिस्क होता है, right? So now let's understand one simple thing, and I have some data to share with you. अपन सब लोग ये, so this is what this is, गजेंद्र एंड एवरीबडी हियर इज, ये कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारा नंबर्स और डेटा है। देखो मेरा काम बहुत डिफिकल्ट है, अगर मैं ग्राफ्स और चार्ट्स नहीं बताएगा तो आपको भी लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत तो मेरे को भी दिखाना पड़ेगा। But what is this? All these numbers, by the way, all the audience, you don't need to read all these numbers, but these numbers are basically what it says is मंथली रिपोर्ट, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मंथली रिपोर्ट है। और ये मंथली रिपोर्ट में ये लिखता है कि लोगों ने पैसा कहाँ पे निवेश किया। सबसे पहले मैं आपको पिछले साल का दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, सितंबर 2024। ओके, आई एम मार्किंग इट हियर, सितंबर 2024। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सितंबर 2024 में जब निफ्टी का लेवल 26,000 था, तब सबसे ज्यादा पैसा कहां पे लोगों ने लगाया। सी, दिस इज कॉल्ड सेक्टर फंड एंड थीमेटिक फंड। तो सितंबर 2024 में सेक्टर फंड एंड थीमेटिक फंड में 21,917 करोड़ पैसा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। 8,662 करोड़ इन्वेस्टर्स ने उसमें से विड्रॉ किया, और कुल मिला के कितना पैसा लगाया, 13,254 करोड़ was invested in sector funds. Okay, is this clear? I hope everybody can read it. In September 2024, the highest amount of money, मतलब more than 30%, almost 40% of the money, मतलब 34,000 तो टोटल है, उसमें से 13,000 मतलब 40% of the money was invested only in sector funds and thematic funds. Okay, तो सितंबर 2024 में क्या माहौल था, मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, लोगों का बहुत अच्छा रिटर्न बन रहा था, डिफेंस फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब में पैसा, बहुत सारा पैसा लगाया। नाउ 1 ईयर लेटर, ये सब सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड्स, ये सब का रिटर्न आप जानते हैं, क्योंकि टोटल कुल मिला के निफ्टी का रिटर्न ही जीरो है। बहुत सारे सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स का रिटर्न जीरो, नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, इस तरीके का होगा, राइट? सो नाउ लेट अस सी 1 ईयर लेटर, सितंबर 2025 में, नाउ व्हाट इज द सिचुएशन। सो सितंबर 2025 में सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड का क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक साल रिटर्न नहीं आया। सो व्हाट इज द सिचुएशन, 11,000 करोड़, सी, इंस्टेड ऑफ 33,000 करोड़, नाउ इट इज 11,000 करोड़। रिडेम्पशन इज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, और पैसा कितना आया, 1,200 करोड़। So what has happened? When market was at the peak, people have put sector fund and thematic fund 13,000 करोड़। जब मार्केट में रिटर्न नहीं आया तो पैसा डालना बंद। तो सवाल ये बनता है कि सितंबर 2025 में सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने कहां पे डाला, तो उसका जवाब यहां पे है, विच इज गोल्ड ईटीएफ्स, 8,400 करोड़। और सेकंड हाईएस्ट क्या है, अदर ईटीएफ, उसमें क्या आता है, सिल्वर, राइट? तो सवाल ये भी बनता है कि अच्छा, तो 2024 में डाला कि नहीं डाला। सो 2024 में गोल्ड ईटीएफ किधर है, ओनली 1,000। और अदर ईटीएफ मतलब सिल्वर किधर है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, लाइक 300 करोड़, इतने बड़े इंडस्ट्री में। सो व्हाट डज दिस डेटा एक्चुअली टेल यू, व्हाई डिड आई शो यू दिस डेटा? पिछले साल जब मार्केट बढ़िया कर रहा था, तब सब लाइन लगा के पैसा इक्विटी, और इक्विटी ही नहीं,
सेक्टर और थीमेटिक में डाल रहे थे। वो जो थाली का मैंने एग्जांपल दिया ना, उसमें अचार और चटनी जो है ना, वो सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड है। तो 1 साल से लोग अचार और चटनी खा रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट का क्या होएगा। तो भाई देखो, मार्केट ऐसा है, मार्केट में तो जो होने वाला है ना वही होएगा, लेकिन तुम क्या खा के बैठे हो, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, राइट? लाइक समटाइम somebody had asked me, Gajendra, you might find it odds, एक बार मेरे को किसी ने बोला था कि लोग म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो पिछले 1 साल का रिटर्न देख के डिसाइड करते हैं उधर पैसा डालने का। तो बोला, दूसरे कौन से होते हैं? बोला, दूसरे वो होते हैं जो सबका इंटरव्यू देखते हैं, पूरा यूट्यूब में देखते हैं, पूरा फंड का स्कीम फैक्ट शीट पढ़ते हैं, फंड मैनेजर का इंटरव्यू देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, फिर पोर्टफोलियोज मंगाते हैं, 3-4 ऐप पे भी पता करते हैं क्या हो रहा है, पूरा का पूरा तहकीकात करते हैं और उसके बाद 1 ईयर परफॉर्मेंस देख के पैसा डालते हैं। तो बोला, ऐसा कैसे? ऐसे क्योंकि ये इतना सारा रिसर्च जो करते हैं ना, वो इतना सारा रिसर्च भी लोग उसी का करते हैं जिसका 1 ईयर परफॉर्मेंस अच्छा है, राइट? क्योंकि जिसका परफॉर्मेंस नहीं है उसका तो वैसे भी कोई रिसर्च नहीं करता है। सो द थिंग इज दैट whatever data I showed you in this mutual fund industry data, वो ये दिखाता है कि people have a lot of recency bias. So we have now covered 2 or 3 things, and I want to give you just one last information कि लोग इतना certainty ढूंढते हैं, इतने जवाब ढूंढते हैं in something which is essentially uncertain, right? और जैसे मैंने टीम का एग्जांपल दिया, थाली का एग्जांपल दिया, the right investor is someone who understands that the world is uncertain, तो प्री डिटरमाइंड, प्री जज कि टॉस तो जीतने वाले हैं, बैटिंग लेने वाले हैं, ऐसे करके टीम नहीं बनाते हैं। मार्केट तो ऊपर ही जाएगा ऐसे सोच के पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। मुंबई के पानी में अमृत निकलेगा ऐसे सोच के मसालेदार खाना नहीं खाते हैं, राइट? सो फॉर एवरीथिंग, व्हेन इट्स अ टीम वी टॉक ऑफ बैलेंस, व्हेन इट्स अ डाइट वी टॉक ऑफ बैलेंस, करेक्ट? सो व्हेन यू हैव अ पोर्टफोलियो you must talk of balance. Just the way teams are not made by assuming some outcome, just the way diets are not made by assuming some outcome, the same way portfolios should not be made by assuming some kind of outcome. सबसे बड़ा बायस यही है कि लोगों को हर चीज में ऐसा लगता है कि ग्राफ्स और चार्ट्स और मैथ्स पढ़ने से मेरे को समझ में आ जाएगा। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा ही होने वाला है, अपन ऐसे ही करेंगे, राइट? सीकिंग सर्टेनिटी इन व्हाट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिस्टिक। फिर रीसेंसी, भाई अब तक जो हो रहा है वही होएगा। सो ऑल दीज थिंग्स, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल बायसेस एज फार एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज कंसर्न। आई वॉन्ट टू गिव 2 or 3 मोर एग्जाम्पल्स। देखिए क्या होता है, मार्केट में ऊंच नीच जब होती है उससे हम लोग अनसेटल हो जाते हैं। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स अबाउट मार्केट बिहेवियर विच यू माइट नॉट हैव नोटिस्ड। मार्केट के बारे में बहुत सारे ग्राफ्स और चार्ट्स लोग देखते रहते हैं, बट देर आर फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू शेयर विच यू प्रोबेबली मे नॉट हैव नोटिस। आप ऐसे समझिए कि ये मार्केट को देखने का एक नया तरीका है या अलग तरीका है। नाउ व्हाट इज दिस चार्ट एक्चुअली? ये जो चार्ट है, आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस। What this says, Nifty 50, right? Calendar year wise performance and drawdown. So in this chart, there are two types. There is basically हर साल का डेटा है, 2000, 2001, 2002, 2003, हर साल का है. And then there is a blue colored bar and there is a green colored bar. जो blue colored bar है ना, वो आपको ये दिखाता है that in any given year, from the highest point to the lowest point, इंडेक्स कितना गिरा। जैसे 2025 के पहले 9 महीनों में, अभी तक अक्टूबर का डेटा इसमें अपडेटेड नहीं है बिकॉज अक्टूबर कल खत्म हुआ है, तो ये सितंबर तक का डेटा है मार्केट। और हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट, खराब से खराब समय 2025 में इंडेक्स हैज फॉलन 8%। 2024 में निफ्टी हैड फॉलन 11%, 2022 में 7%, 2021 में हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट 16% डाउन, 2021 में हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट 10% डाउन, 2020 में कोविड आया तो हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट 38% डाउन। यहाँ पे सब डबल डिजिट, राइट?
सो मैं सब लाइन आपके लिए रीड नहीं कर रहा हूं, बट ये देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार इंडेक्स 12-15% गिरता है। इसमें नया कोई चीज नहीं है, करेक्ट। और खास बात यह है कि सबका पैसा निफ्टी में या लार्ज कैप में नहीं है, तो एक बार हम लोग स्मॉल कैप का भी देख लेते हैं। इफ यू सी स्मॉल कैप, फिर से सेम डेटा। दिस ईयर एट द वर्स्ट पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स वाज 23% डाउन, लास्ट ईयर 14%, 2022 में 33%, कोविड के टाइम 47%, 2008 में 76%। तो ये डेटा क्या दिखाता है? हर साल अपने ऊपर के लेवल से औसतन एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स 20, 25, 30% गिरता है। मिड कैप इंडेक्स लेंगे तो फिर से भी उसमें भी इसी तरीके का नंबर्स आपको दिखेगा। तो ब्लू कलर के बार्स निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप में ब्लू कलर का बार आपको ये दिखाता है कि हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट कितनी गिरावट आई। जो ग्रीन कलर का बार है ना, वो ये दिखाता है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट छोड़ो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर देखो तो मार्केट कहां पे बंद हुआ। तो आपको ये जानकर के देखने को मिलेगा कि भाई मोटा मोटी कई सारे साल ऐसे हैं जहां पे अल्टीमेटली 1 जनवरी टू 31 दिसंबर मार्केट पॉजिटिव में क्लोज होता है। हम लोग किसी को 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करने को बोल नहीं रहे हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि एक चीज तो तय है कि हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार, अगर निफ्टी है तो 12-15%, मिड कैप है तो 20% और स्मॉल कैप है तो 25-30%, हर बार अपने ऊपर के लेवल से एक बार ये गिरता है। इसमें नया कोई चीज नहीं है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप पिछले 32 साल का हिस्ट्री देख लेंगे, मतलब 1992 में अपना मार्केट लिबरलाइज हुआ, तब से आप हिस्ट्री देखेंगे तो क्या दिखा रहा है? आर्थिक व्यवस्था में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12.5% है। सेंसेक्स का अर्निंग ग्रोथ 12.5% है। सेंसेक्स का भी ग्रोथ लगभग 12% प्लस डिविडेंड यील्ड, तो मतलब लगभग 14% सेंसेक्स का भी कंपाउंडिंग है। तो अभी दो चीज मैंने आपको समझाया। पहला चीज, लंबे अरसे में सेंसेक्स का कंपाउंडिंग लगभग 14% है। इसके साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बताया कि हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार 12-15% और स्मॉल कैप रहेगा तो 25-30% गिरता है। सो अभी इसमें दो चीज तय है, दो या तीन चीज इसमें फिक्स्ड है। ऊपर के लेवल से गिरेगा, गिरने के बाद फिर से उठेगा, लंबे अरसे में 14-15% कंपाउंडेड आता है। ये तीनों चीज फिक्स्ड है। और क्या क्या चीज फिक्स्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूं। What doesn't change? Once every year or so, the market will fall 15, 20, 25, 30, depending on whether you are talking large cap, mid cap, or small cap. Second thing, after the market falls, it will rise. और दो तीन चीज फिक्स्ड है। जब मार्केट गिरेगा तो लोग कैसा बर्ताव करेंगे वो भी फिक्स्ड है। गिर के उठेगा, न्यू हाई बनेगा, तब लोग कैसा बर्ताव करेंगे ये भी फिक्स्ड है। आपके इमोशंस आपके साथ कुछ ना कुछ खेल खेलेंगे, हाईज पे या लोज पे, वो भी फिक्स्ड है। और जब भी हाईज और लोज आएगा तो अपन बहुत सारा टीवी देखेंगे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, ये भी फिक्स्ड है। तो क्या चीज है जो फिक्स नहीं है? वो ये है। आज क्या है कि गजेंद्र ने हमको अक्टूबर 2025 में बुलाया, इसलिए लोगों के माइंड में ऐसा है कि भाई ट्रम्प साहब का टैरिफ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अक्टूबर 2025 में बुलाया ना, इसलिए ट्रम्प और फ्री ट्रेड और टैरिफ का चिंता कर सकते हैं। अगर पिछले साल बुलाते तो हम लोग कोएलिशन पॉलिटिक्स के बारे में अपना नॉलेज दिखाते एक दूसरे को, करेक्ट। अगर अक्टूबर 2024 के बजाय अक्टूबर 2023 में बुलाते तो हम लोग इसराइल और ईरान की चिंता कर रहे होते कि भाई बताओ क्या होएगा मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। अगर मार्च 2023 में बुलाते तो हम आपको बताते कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है उससे कैसे लेमन क्राइसिस हो सकता है। अगर मई 2022 में बुलाते तो हम लोग तेल की चिंता कर रहे होते। अगर जनवरी 2022 में बुलाते तो हम लोग यूक्रेन और रशिया की चिंता कर रहे होते। अगर 2021 में बुलाते तो हम लोग सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव जितना नुकसान नहीं होगा इसकी बात कर रहे होते। तो आप समझ गए कि भाई दो चार चीज है ना वो फिक्स्ड है। पहला चीज क्या फिक्स्ड है कि लंबे अरसे में इंडेक्स का रिटर्न 14-15% है। दूसरा चीज क्या फिक्स्ड है कि हर साल ऊपर के लेवल से एक बार गिरता है। तीसरा चीज क्या फिक्स्ड है, गिर के फिर उठता है।
उठेगा तो लोग कैसा बर्ताव करेंगे, गिरेगा तो लोग कैसा बर्ताव करेंगे, ये सब फिक्स्ड है। तो कौन सा चीज फिक्स नहीं है? फिक्स खाली एक चीज नहीं है कि अभी कौन से सब्जेक्ट पे पीएचडी करने का, ये फिक्स नहीं है। और अगर अक्टूबर 2025 में बुलाया तो हम ये यूएस का बात कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर 2026 में बुलाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि हम लोग अलग टॉपिक का पीएचडी कर रहे होंगे, राइट? सो ये स्लाइड को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। what doesn't what what doesn't change, right? ये I should have written what changes. Okay, so just clarified for you, sorry. What doesn't change, वो ये चीजें हैं, and what will change, only the subject of discussion will change. So now when you talk about biases, so I want to stop here. I've gone on for too long, maybe 40-45 minutes, but I want to just sum up for you. Biases की जब बात करते हैं तो मैंने जानबूझ के ऊपर के 3-4 जो बायसेस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया है, इज बेसिकली दीज थिंग्स। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, जितना आपको लगता है उतना ग्राफ चार्ट और गणित नहीं है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइकोलॉजी, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपना बर्ताव, हाउ टू कंट्रोल योर साइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, seeking clarity and certainty in something which is essentially uncertain and probabilistic, ये बायस है। रीसेंसी, एक साल देख के रिटर्न, जैसे अभी मेरे को किसी ने बोला था, वो रीसेंसी बायस का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पिछले साल लोग सेक्टर और थीमेटिक में डाल रहे थे, अभी गोल्ड में डाल रहे हैं। अभी मैंने किसी को बोला कि यार गोल्ड का दाम इतना ऊपर चला गया, अभी क्यों गोल्ड में डाल रहे हो? बोलता है नहीं नहीं, गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है आशीष भाई, अपने शास्त्रों और पुराणों में भी लिखा है कि गोल्ड खरीदना चाहिए। बोला भाई वो हजारों साल से लिखा है, कल थोड़ी लिखा था। हाँ, तो तुमने तो कल लेना चालू किया है, ये तो हजारों साल से लिखा है, पहले लेने का था। सो क्या होता है, कभी कभी लोग अपना कुछ भी डिसीजन जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी लॉजिक उसमें लगा देते हैं। ये सब चीजों का कोई अंत नहीं है। बेसिकली क्या है कि भाई एसेट एलोकेशन करो और पोर्टफोलियो को बैलेंस रखो। गोल्ड का दाम कब ऊपर जाएगा वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो गोल्ड ऑलरेडी होना चाहिए पोर्टफोलियो में। ऊपर जाने के बाद लेगे तो उसका कुछ नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में और एक प्रोवर्ब है विच सेज यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल बी। तो पिछले साल लोग सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड ले रहे थे, अभी लोग गोल्ड ले रहे हैं। वी आर परपेचुअली शूटिंग वेयर द रैबिट वाज 2 years बैक, right? So the top three biases according to me is trying to look for math and science in what is essentially full of emotion. That is the first bias. Trying to look for certainty and clarity in essentially what is uncertain and probabilistic. That is the second important bias. And the third one is recency. कि भाई जो you know पास्ट को, अपना पूंछ को, कीप चेजिंग योर ओन टेल, I think that is complete disaster. And somebody in the chat asked, "Hey, what should be the right thing that investors should be doing?" I think the right thing to do is to always ensure that your portfolio has balance, your portfolio is asset allocated, and you don't take any deterministic, मतलब कि भाई अभी तो इक्विटी चलेगा, अभी तो गोल्ड चलेगा, अभी तो ये सेक्टर चलेगा, अभी तो वो चलेगा। भाई सब चीज, एवरीथिंग इज अनसर्टन, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक इन योर पोर्टफोलियो। अगर आपको लगता है ना कुछ चीज बहुत चलेगा तो उसका थोड़ा वेटेज बढ़ा सकते हैं, 100% उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। द एंटायर थिंग विच आई शोड यू, उसका मेन निष्कर्ष ये निकलता है कि देर आर फ्यू थिंग्स विच आर फिक्स्ड, बट हाउ द मार्केट विल बिहेव इन द शॉर्ट टर्म, दैट इज नॉट फिक्स्ड। कौन से सब्जेक्ट पे आपको पीएचडी करना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली नॉट फिक्स्ड। सो have a balance in your portfolio, make sure you have right asset allocation, listen to what your wealth managers are telling you, have a good wealth manager. These things are, be more disciplined. All these things are very important, right? So I'll pause here, Gajendra. We may have missed out few things, and you can cover it in the Q&A. Sure. बिल्कुल, थैंक यू आशीष। एज यूजुअल, आई यूज द वर्ड रॉक स्टार, सो दैट इज मतलब 100% आपने वो परफॉर्म किया है। माय क्वेश्चन एंड
Before ask question to आशीष, पिछले एक साल में आशीष ने कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वुड हैव डन मोर देन 50 to 100 पॉडकास्ट। आप लोग, बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं पॉडकास्ट देख के लास्ट एक साल में। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर एक पॉडकास्ट आपको देखना है, मतलब एक जन को फॉलो करना है, इट शुड बी आशीष, बिकॉज इनकी भाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आशीष, बहुत लोग हमारे जो पॉडकास्ट देख के आए हैं वो हमें दो ही चीज कहते हैं कि सर आपके पॉडकास्ट में दो चीज बहुत अच्छी लगी थी, एक तो ऑथेंटिसिटी and simplicity. And I can exactly vouch for the same in your podcast because I am a big follower of your podcast. So my request to all the people who have been watching me, please आप आशीष के दो तीन पॉडकास्ट आप ऑनलाइन निकाल के देखिए, और आप देखिए जो बातें इन्होंने बताई है, उन्होंने उन पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में अपनी लाइफ स्टोरी और एग्जांपल्स जर्नी के थ्रू बताई है। और आशीष, इसमें मैं एक, एक और चीज हाँ, ऐड करूंगा, वाइट ओक कैपिटल की एक मंथली रिपोर्ट आती है जहाँ पे वो पूरे डेटा के बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ है पिछले टाइम में, इन टर्म्स ऑफ डेटा कि क्या क्या हुआ है। इट्स डजंट टॉक अबाउट फ्यूचर, टॉक अबाउट द एक्चुअल डेटा पॉइंट। एंड इफ यू वांट टू रियली एनहांस योर नॉलेज फ्रॉम अ डेटा पॉइंट पर्सपेक्टिव, यू शुड लुक एट दैट रिपोर्ट आल्सो। आशीष, वो जो डेटा, जो वेबिनार आप करते हो वो मतलब पब्लिक के लिए भी होते हैं, मतलब जो मंथली आप करते हैं सेशंस बेस्ड ऑन डेटा? Yeah, so we generally do it for wealth managers and distributors, but if you want, we can conduct a session separately. Okay, because I think those sessions are very useful because and the best part about, I think, your company White Oak, which is the art and science of investing. तो आशीष इज अगेन वन रेयर कॉम्बिनेशन जिनको नंबर्स उंगली पे है, और ही इज अ मास्टर स्टोरी टेलर ऑल्सो, सो ही कैन बिल्ड बोथ आर्ट एंड साइंस इनटू 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 एट द सेम टाइम। आशीष, आपने एक जो प्रेजेंटेशन दिखाया था, एक बार आप खोल सकते हैं, वो जो निफ्टी का कैलेंडर ईयर रिटर्न्स और Yeah, yeah, ड्रॉडाउन्स sure, बताया था sure, आपने। sure, sure, sure. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना था इस टॉपिक पे, कैलेंडर, निफ्टी का कैलेंडर ईयर रिटर्न्स एंड ड्रॉडाउन्स। हाँ Yes. आशीष, दो सवाल थे इसमें। एक सवाल ये था कि लास्ट 15 साल में हर बार कैलेंडर ईयर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बारिंग 2011, अगर हम देखें तो 14 साल में। सो दो सवाल है कि एक तो लोग अब इसको ऑलमोस्ट गारंटेड रिटर्न मानने लगे कि हर साल 10-12% तो आएगा ही आएगा, 15% Right. मतलब राइट टू विन है हमारा। दूसरा, वोलेटिलिटी खत्म हो गई है लास्ट, अगर हम 10 साल में देखें, बारिंग कोविड, और वो भी 30% सिर्फ एक महीने के लिए था। अदरवाइज लोगों ने रियल ड्रॉडाउन्स देखे ही नहीं है, 20%। और आप, मुझे मालूम है आपने करियर 2000 के आसपास शुरू किया था, आपने मल्टीपल साइकिल्स देखी है, डॉट कॉम बस्ट, बूम एंड बस्ट से लेके 2007-8 का क्राइसिस, 2013, हमने वो काम चालू किया तो सीधा यही आ गया। यही आ गया था, राइट? तो आप, आई एम श्योर यू वर वंडरिंग कि डिड आई जॉइन द राइट इंडस्ट्री, गलत जगह तो नहीं आ गए? तो Right. कहीं ऐसा तो नहीं है, और अभी हम लोग बोल रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर स्मार्टर, एफआईआईज निकाल रहे हैं, तो हमें लगता है कि दिस टाइम इज डिफरेंट एंड इंडियन इन्वेस्टर्स हैव बिकम स्मार्टर नाउ, और अब वो वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। डू यू थिंक इज दिस रियली द केस, और ये अभी तक हमने झटके देखे ही नहीं है? वी आर बिकमिंग ओवर Hmm. कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। वांटेड योर व्यूज। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गजेंद्र, आई थिंक एज फार एज इंडियाज मार्केट इज कंसर्न, आई पर्सनली थिंक दैट द वोलेटिलिटी हैज गॉन डाउन, एंड यस। इसके मैं कुछ कारण आपको बता सकता हूँ। पहली बात क्या है कि भाई, जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया, मैं तो 1999 में स्टार्ट किया, 26 साल हो गए उसको। तो हकीकत क्या है कि तभी इंडिया का जो रेगुलेशन था, जो मार्केट का स्ट्रक्चर था, रेगुलेशन था, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, राइट, टेक्नोलॉजी नहीं थी, करेक्ट। ये सब हर्षद मेहता, केतन पारेख, फिर वो यूटीआई को लेकर के, US 64, नॉट यूटीआई, द प्रायर वन, US 64 को लेकर के, सो देयर वर मेनी कंसर्न्स। और क्या है कि जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया ना, 20% अगर मार्केट गिरा तो हमको लगता था, अरे यार, ये जैसा लाइक यू राइटली सेड, 20% मार्केट गिरा, हमको लगता था हम तो यार करियर ही गलत ले लिए यार, मतलब क्या हो रहा है, आए दिन इधर कुछ ना कुछ लगा रहता है, मतलब कुछ ना कुछ सर्कस चलते रहता है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी अनसर्टन एंड वेरी वेरी क्रेजी टाइम, बट एट द सेम टाइम रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, दूसरा चीज, लोग भी बहुत ही इनएक्सपीरियंस थे। और एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए गजेंद्र, तब जब मार्केट गिरता था तो लोग बहुत डरते भी थे, नाराज भी होते थे। क्यों? क्योंकि भाई 1999 में आप समझो, पीपीएफ का रेट 12% था। आप बैंक में पैसा रखोगे तो 10% मिलता था। पोस्ट ऑफिस का मंथली इंटरेस्ट रेट 10% था। मंथली इंटरेस्ट देने वाला पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट का एनुअल रेट 10% था। मेरे को याद है आरबीआई का था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ बॉन्ड था, उसका 11% टैक्स फ्री था। तो मार्केट में एक तो लोग, ज्यादा लोग आते नहीं थे, आने की जरूरत नहीं थी,
रेगुलेशन टेक्नोलॉजी अलग, दूसरा इन्वेस्टर अलग। सी आज क्या होता है हमारे मार्केट में ना, बहुत सारे लोग ऐसे रैंडमली सोशल मीडिया और टीवी में बहुत अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं कि भाई लॉट ऑफ पीपल आर यंग इन्वेस्टर्स, ये सब 2020 के बाद आए हैं, इनको क्या मालूम, इन्होंने करेक्शन देखा नहीं है, 20% मार्केट गिरेगा तो सब भाग जाएंगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू मी इट्स टोटली रॉन्ग। यू नो व्हाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि भाई आज जो 25 साल के हैं वो मैं नहीं हूं। आज 25 साल के जो लोग हैं, बाजार अगर 20% गिरेगा तो जो लड़का या लड़की आज 25 साल का है उसका कैसा रिएक्शन होगा, मैंने कैसा रिएक्ट किया था 25 साल पहले, वो याद करके मैं गेज नहीं कर सकता हूं। पीपल हु आर यंग टुडे, दे आर बेटर एजुकेटेड, दे आर मोर knowledgeable, they have more information than us, they have a better history of the market, they have better information and technology, the regulation is better, this country is different, and we are not that type of market which was there 25-30 years back, right? So what is most important thing to keep in mind is that the people today is not the same as me 25 years back. हर जनरेशन को लगता है कि उसके बाद के जनरेशन में लोग सब ढक्कन है, करेक्ट। बट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का इतिहास क्या बताता है? दुनिया का इतिहास ये बताता है कि हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है। बस ये एआई वगैरह का बात हो रहा है, ये मैंने और आपने थोड़ी बनाया है, ये करेक्ट। अपने अपने nieces, nephews, sons and daughters ने बनाया ना, हमने थोड़ी बनाया है, right? So I think that I wouldn't be hesitant to say that yes, the volatility has gone down for multiple reasons. We are a much bigger market, much bigger country. We are a lot more sophisticated than what we were 25-30 years back, and definitely investors today, at least they have more data, more knowledge, more information and more precedents to go by. Take a simple thing यार, मैंने अपना करियर चालू किया तब ये चार्ट था क्या? नहीं था। ये सब हम लोग बताते हैं, ये लॉन्ग टर्म चार्ट था क्या? नहीं था ना। मैंने जब मेरा करियर चालू किया तो इधर चालू किया। तो इंडिया का लिबरलाइजेशन का हिस्ट्री कितना था? इतना। अभी इंडिया का लिबरलाइजेशन का हिस्ट्री 32 साल का है, राइट? सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ द वॉलेटिलिटी इज लो. And of course, small cap, mid cap volatility is higher, but overall market volatility is low, and there are reasons for it. बट आपने आपने ही आशीष, बताया था कि आशीष कि लोग वही ढूंढते हैं। कुछ लोग तो लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस ढूंढते हैं और कुछ लोग इतना सारा रिसर्च करके लास्ट 1 ईयर का बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है वही ढूंढते हैं। और आपके डेटा ने भी ये बताया कि 2024 में सब लोग सेक्टर फंड्स खरीद रहे थे और 2025 में सब लोग गोल्ड फंड्स खरीद रहे हैं। तो Yes. बिहेवियर, चाहे नॉलेज बढ़ सकती है, इंफॉर्मेशन बढ़ सकती है, लेकिन बिहेवियर 50 साल पहले भी सेम था, 100 साल पहले भी सेम था। हाँ, एक किताब आई थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन 100 साल पहले, yeah. राइट? तो उसमें जो रूल्स बताए थे वो आज भी वैलिड करते हैं, लेकिन लोग अभी भी सबको शॉर्ट टर्म चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मार्केट जब इक्विटी मार्केट 20% गिरता है, आजकल तो 5% गिरता है तो हाहाकार हो जाता है, मतलब ब्लड बात हो गया। सिल्वर 20% अभी टूटा है, लोगों को पता भी नहीं चला कोई फ्रंट पेज हेडलाइंस नहीं है सिल्वर की। तो See, हाँ, तो हाउ डू वी डील विद दिस? मतलब कि ये जो इंस्टेंट हमें मतलब चाहिए वैलिडेशन की, 5-8% गिर गया, मैं क्या करूं? लोगों को मतलब कंफ्यूजन आ I'll जाता tell है। you. Ashish, just in continuation to this Yeah, question, yeah. I can add it. Have you, kind of figured out a behavioral hack for your own when you manage your own personal wealth, not to succumb to FOMO, or how do you deal with greed? And if something has gone up very high in the last 1 year, how do you make sure that you don't fall into that trap? If you can just add it to the question, what See, was मैं तो हमेशा याद रखता हूँ, हमेशा मैं याद रखता हूँ, जैसे वर्ल्ड के सबसे फेमस इन्वेस्टर है मिस्टर बफेट, राइट? मिस्टर बफेट का सबसे फेमस स्टेटमेंट, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर, बट मिस्टर बफेट का मोस्ट फेमस इन्वेस्टमेंट इज मिस्टर बफेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज नॉट दैट के हाई आरओई, फ्री कैश फ्लो, ऐसा सब कोई स्टेटमेंट सबसे फेमस नहीं हुआ है। सबसे फेमस कौन सा स्टेटमेंट हुआ है? बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो मेरे को बताओ चिंतन, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? अदर्स। अदर्स कौन? Others,
others. The most important is who is others. तो ये मैंने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का इतना सारा डेटा यहाँ पे क्यों दिखाया? मैं यही बता रहा हूँ कि आप हमेशा ये देखो कि अदर्स क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं आपका बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कर रहे हो, मैं आपका बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? Basic point is that the data tells you what others are doing. And you ask me what is the rule. For me, the rule is simple, not to do what others are doing. क्या करने का है वो नहीं मालूम है मेरे को, लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं वो तो पक्का नहीं करने का है। हाँ, दैट इज द रूल, ठीक है। नाउ जो आपने, सॉरी गजेंद्र, इसके पहले आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था बिफोर चिंतन सेड, सो आई विल बी ओब्लाइज्ड इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन। या बेसिकली मतलब इन्वेस्टर्स बिहेवियर डजंट चेंज, जो आपने बताया था, डेटा सो आई वाज बहुत कुछ सेइंग मिल रहा है। सो आई वाज बेसिकली सेइंग कि देखिए क्या है, इन्वेस्टर्स के पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, मैच्योरिटी लेवल, ये सब तो बहुत ही इंक्रीज हो गया है। गलतियां भी, लेकिन गलतियां फिर भी हो रही है। हम्म चेंज ये हुआ है कि लोगों को समझ में आ गया कि भाई गलतियों को लोग टॉलरेट कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि 100 रुपए का 60 हुआ ना, 70 हुआ ना, तो मतलब बोले बॉस ये जगह अपने काम का नहीं है, निकलो इधर से। दिस इज यू नो, बट नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड कि बेटा ये ऐसे ही चलता है, यू नो, मिस्टेक्स आर हैपनिंग, बट the ability to digest the mistakes. See, Gajendra, if you lose 20 in 1999, if you lost 20%, na, you would not get sleep in the night. Today, if my son loses 20% in the market, na, he doesn't lose his sleep. He's not going. And see, rightly or wrongly, when you're talking about stock market and mutual funds, rightly or wrongly, you're not talking 140 crore people. There are 5 crore 70 lakh investors in mutual funds. And there are some 11 to 12 crore guys in the stock market. और इसमें भी ओवरलैप है, तो कुल मिला के तुम इंडिया के ऊपर के 8-9 करोड़ लोगों का बात कर रहे हो। ये 8-9 करोड़ लोग 142 करोड़ नहीं है। ये जो 8-9 करोड़ लोग हैं, दे आर राइटली और रॉन्गली द क्रीमी लेयर ऑफ द कंट्री। सो देयर आर इनफ नंबर ऑफ पीपल, देयर इज अ रीजन। सी, अभी इंटरेस्ट रेट 6% हो गया, सब कुछ डिजिटाइज हो गया, राइट? ये जनरेशन का एस्पिरेशंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस सब अलग है। सो लोग कैपिटल मार्केट में आएंगे। इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री, मार्केट इज डिफरेंट, सो पीपल विल कम टू द कैपिटल मार्केट, यस दे विल कम, बट जो इमोशनल बायसेस है वो चला नहीं जाएगा। खाली उसका टॉलरेंस, रिस्पॉन्स, द गट टू डाइजेस्ट इट, वो चेंज हुआ है। ओके, दैट्स द थिंग। एक और सवाल था कि काफी लोग, मैं देखता हूँ यू हैव बीन इनटू म्यूचुअल फंड्स, तो आपसे एक पूछना था, डू यू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट चंक इनटू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, और आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में मैं स्टॉक्स में डालूं तो ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड से बना सकता हूँ? व्हाट हैज बीन योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर पर्सनल जर्नी, एंड यू हैव बीन मीटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, तो आपको क्या लगता है कि वहां भी एक बायस होता है कि यार ये स्टॉक तो मैं अच्छे से चुन कर सकता हूँ, मैं टाइमिंग कर सकता हूँ, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? You see, I think that, so first of all, I want to clarify, जो कई लोगों को नहीं पता होगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, लाइक आई एम अ सीईओ ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी, सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक रूल शायद सबको नहीं पता होगा, बट इट्स इंटरेस्टिंग फॉर अस, जस्ट फॉर द ऑडियंस आई एम क्लैरिफाइंग, फॉर द टॉप, आई थिंक फॉर टॉप 30-35 पीपल इन माई कंपनी, सेबी का रूल है कि हम लोग जितना भी कमाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड पे है, वेरिएबल पे, बोनस वगैरह जो भी है, इन एनी गिवन ईयर जो भी टोटल कॉम्पेंसेशन है, ऑब्वियसली उसमें पहले टैक्स कटता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट टैक्स कॉम्पेंसेशन। जितना भी हमारा पोस्ट टैक्स सैलरी है, सेबी का रूल है 20% ऑफ दैट वो कट होता है और सीधा हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है। मतलब उसमें कौन से स्कीम में इन्वेस्ट होगा वो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्कीम साइज प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट हो जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिकली, बहुत सारे फंड्स में है ये, खाली हमारा नहीं है, व्हाइट ओक में स्पेसिफिकली ये है कि नंबर 1 ये सेबी का डिडक्शन तो होता ही है, दूसरा चीज हमारा रूल है कि हम लोग अपने ही फंड में पैसा डाल सकते हैं, और तीसरा ये है कि हम लोगों को डायरेक्ट इक्विटी ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है, इट्स नॉट अलाउड। ओके, सो वी आर नॉट अलाउड ओनली, सो वेयर इज द क्वेश्चन? आई डू बिलीव दैट कि भाई, बिकॉज आई हैव बीन अराउंड फॉर 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टॉक पिकिंग खुद कर सकता हूँ, बट अलाउड नहीं है, और मैं करता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम सबको बोलते हैं पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, तो हम खुद ही अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या हक बनता है किसी को बोलने का? तो सेबी का डिडक्शन हो कि ना हो, द पॉइंट इज दैट वी ऑल इन्वेस्ट इन आवर ओन फंड्स एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। करेक्ट।
करेक्ट। आशीष, कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते सर वो बेस्ट फंड बता दो जिसमें मैं 25 साल डाल सकता हूँ, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, 3 बेस्ट फंड बता दीजिए। और सब लोग जब डे वन में आते हैं ना, सब 25 साल की बात करते हैं, लेकिन 25 महीना भी टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ डू वी हैंडल दिस, मतलब? सी एक्चुअली बेस्ट नाम का तो कोई चीज नहीं है। रेलेवेंट फंड या राइट फंड हो सकता है, बेस्ट तो क्योंकि क्या है, बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है। यू नो देर आर चॉइसेस। ओके, लाइक आई गिव एन एग्जांपल कि मेरे को, मैं चाइनीज खाऊं कि लेबनीज खाऊं, बोले मतलब उसमें बेस्ट कौन सा है? तो दे आर जस्ट चॉइसेस, दे आर नॉट बेस्ट, और इट्स जस्ट दैट दे आर डिफरेंट चॉइसेस। इट्स नॉट दैट देयर इज वन इज बेस्ट और वन इज बेटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको बेस्ट फंड का जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी का जरूरत है। हम्म। राइट। सी जिस चीज में बहुत, अगर आप बेस्ट, देखिए क्या है कि एक होता है BSE 500 जो हमारा इंडेक्स है। BSE 500 इंडेक्स जो है, जो मार्केट का इंडेक्स है, वो मार्केट का एवरेज है, उसको मैं बोलता हूँ वो है सर्वगुण संपन्न। हम्म। मतलब इसमें अच्छा कंपनी, खराब कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, डिफेंसिव, सिक्लिकल, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें सब कुछ है। हम्म। राइट। अगर BSE 500 के मुकाबले जो बेस्ट फंड है, वो अभी हम्म। पिछले एक साल में BSE 500 के मुकाबले 20% रिटर्न ज्यादा दे रहा है, हम्म। तो भाई इंडेक्स से 20% ज्यादा रिटर्न कौन देगा? हम्म। जिसके पोर्टफोलियो में वही चीजें हैं जो इंडेक्स में अभी बहुत बढ़िया हम्म। प्रदर्शन दिखा रही है, हम्म। और जिसके पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडेक्स में अभी फिलहाल खराब कर रहा है। लेकिन इंडेक्स का क्या है यार, कल अभी समझो मार्केट का माहौल चेंज हो गया, तेल का दाम ऊपर चला गया, इंडिया का और यूएस का FTA साइन हो गया, हम्म। तो क्या होगा? मार्केट इंडेक्स में जो चीजें अभी बढ़िया कर रही है, कल वो खराब कर सकती है, और आज जो खराब कर रही है वो कल बढ़िया करेगी। हम्म। तो जो इंडेक्स के मुकाबले 20-20% ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जिसके पोर्टफोलियो में वही है जो अभी इंडेक्स में चल रहा है, तो हम्म। इंडेक्स पलटेगा तो वो तो क्या है, वो +20 का -20 हो जाएगा। करेक्ट। सो यू डोंट वांट द हाईएस्ट परफॉर्मर और द बेस्ट परफॉर्मर, यू वांट द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। कि भाई इंडेक्स में तो रोटेशन होते रहता है, कभी प्राइवेट चलता है, कभी PSU चलता है, कभी डिफेंसिव चलता है, कभी सिक्लिकल चलता है, कभी ग्रोथ चलता है, कभी वैल्यू, कभी लार्ज कैप, कभी स्मॉल कैप। तो इंडेक्स सर्वगुण संपन्न है ना, तो अपना पोर्टफोलियो भी सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। हम्म। और इंडेक्स में जो जो एलिमेंट्स है, वो पोर्टफोलियो में एलिमेंट्स होने चाहिए, केवल स्टॉक पिकिंग सुपीरियर होना चाहिए, विच विल गिव यू कंसिस्टेंसी। सो डोंट लुक फॉर द बेस्ट परफॉर्मर, लुक फॉर द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक एक सवाल और आता है, आई एम श्योर आपको भी काफी आता होगा, मेरे पास लमसम है, इज दिस द राइट टाइम टू पुट लमसम? ये पेरेनियल क्वेश्चन है, राइट टाइम किसी को पता या नहीं होता है। तो हाउ हाउ डू वी पुट आवर मनी, अगर हमको 10-15 साल के लिए लॉन्ग टर्म डालना है तो, और मेरे पास आज मेरा एक पर्सनल है। ओपिनियन है कि, माय पर्सनल ओपिनियन है इसके लमसम कभी डालना ही नहीं चाहिए। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई टेल यू व्हाई। हम्म। बहुत कम समय ऐसे हैं जब मैंने किसी को बोला रहेगा टेबल ठोक के कि लमसम है, अभी पैसा डालो। मे बी इन March 2020, जब मैं इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई यूज्ड टू राइट न्यूज लेटर्स, तो मेरे को याद है 19 March 2020 मैंने न्यूज लेटर भेजा था कि अभी दिस इज द टाइम, यू मस्ट इन्वेस्ट। फिर हम्म। यहाँ पे अगर आप देखिए 2022 में स्टेट इलेक्शन का, जब everybody was worried about Iran and Israel, and राइट। then we had a state election in 2023, end of 23. हम्म। So at that time also, I had actually said that this is a time to invest, and then the market went up. So मेरे को तो पिछले 5-7 साल में 2 ही ऐसे मौके याद है जब मैंने किसी को सजेस्ट भी किया होगा कि लमसम करना चाहिए। I normally tell people to do 6 month 9 month STP, कि भाई हम्म। लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में डालो और फिर स्विच करते रहो। वो क्यों मैं बोलता हूँ, हम्म। क्योंकि जब आप एक नाव में बैठ के, दरिया में नाव में बैठ के सैर करने जाते हैं ना, जब नाव पानी में उतरती है, तभी अगर ऐसा डगमगा के आपको ऐसा गिर जाएगा, ऐसा होएगा ना, तो हम्म। वो पूरा का पूरा टाइम ना आपका ध्यान इधर ही रहेगा कि भाई अभी ये द लीस्ट ऑफ टर्बुलेंस विल एक्चुअली, आप बोले भाई कब वापस आए, तो यू नो हम्म। गुजराती में बोलते हैं ना, घर भेगा थे, राइट। सो बट इफ द एंट्री इज स्मूथ, हम्म। हाँ, तो आप एंजॉय करेगा, फोटो वोटो खींचेगा, सब ठीक है, बिकॉज इफ द एंट्री इज स्मूथ देन यू विल स्टे फॉर लॉन्ग। हम्म। इफ द एंट्री इज वेरी टर्बुलेंट ना, हम्म। समझो आपने किसी का 100 रुपया लगाया लमसम विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशन, 100 रुपया लगाया, 100 रुपया लगाते ही हो गया उसका 85। हम्म। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे ही वो 101 होएगा ना, आपको एक कॉल आएगा कि भाई निकल लेते हैं अभी, इसका हम्म। भरोसा नहीं है। करेक्ट।
अगर आप उसको रोक लेंगे ना तो समझो फिर 140 हो गया, वो 140 से जो ही 125 में आएगा ना, बोलेगा यार इसका भरोसा नहीं है यार, ये हर बार, राइट? So most important thing is that if the entry is smooth, people will stay longer. That is my learning. करेक्ट। एक सवाल हमें स्पेसिफिकली आया था आपसे पूछने के लिए। 50 ईयर ओल्ड हैं जो बहुत लोग नए हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा पैसा एफडीज में डाला है, 50 साल रिटायरमेंट में हैं और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते नहीं है, तो अगर उनको जर्नी शुरू करनी है तो कैसे करनी चाहिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं? तो See, I think asset allocation most important है, right? जैसे आज के तारीख में बहुत लोगों को मन करता रहेगा कभी गोल्ड खरीदने का. So I always tell people, look, there are two types of investors. Either you're an equity investor or not an equity investor. इक्विटी इन्वेस्टर की क्या परिभाषा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको समझ में आता है कि आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होता है तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा तो हमारा एनएवी और कंपनी का शेयर चलेगा, करेक्ट। राइट? इसको समझ में आता है कि इंडिया का इकोनॉमी और ग्रोथ को लेकर के एक्साइटमेंट क्यों है, राइट? सेकेंड, कि भाई पिछले 1 साल का इक्विटी रिटर्न 0 है, तो समझ में आता है कि भाई ऐसा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कभी 20-25% गिर गया तो रात का नींद नहीं उड़ेगा, और दाल रोटी के लिए पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर ये चारों टिक बॉक्स होता है ना तो वो इक्विटी इन्वेस्टर है. जो दूसरा मैंने बोला कि भाई वो बोले चाहे कुछ भी, पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं आया तो बोलेगा अरे यार अपने को पिछले साल पैसा गोल्ड में डालना चाहिए था, आपने पहले क्यों नहीं बोला, आप तो एक्सपर्ट है, आप साइड पे कर लेते, राइट? सो पीपल हु कांट डाइजेस्ट, अरे 1 साल का रिटर्न 0 है, ऐसे कैसे? या समटाइम 20-25% गिर गया तो रात का नींद उड़ जाएगा, बोले यार निकलो यार यहाँ से. या तो अपने इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है दाल रोटी के लिए, या डे टू डे मंथली एक्सपेंसेस के लिए, या who doesn't understand, fully not digested or internalized the economic logic of investing in equity. तो ऐसा अगर रहेगा तो कुछ भी बोले इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है. So if you're not an equity investor by heart, then you cannot be 100% in equity. Then at best you should be 50%, 60% in equity. And if you have 50% in equity, then you should have 15% in gold. Because basically why you are 50% equity? Because you are not out and out equity investor. Which means that when equity declines, you will definitely lose sleep. तो 50% equity का volatility कम करने के लिए ना 15-18% gold चाहिए. Now, after me saying this, you think that you want to change your asset allocation just because I am saying this. Don't start buying gold tomorrow morning. Any change in asset allocation has to be done over the next 2 years. Correct. You cannot do it immediately, right? So what my sense is that ये जब ऐसा market का ऐसा माहौल होता है ना, तभी आप you sit back and think that am I a person who can tolerate equity? That is the answer you need. If you think that okay this doesn't disturb me, बाजू वाले का पैसा किसी और चीज में बन रहा है, मेरा 1 साल का रिटर्न 0 आ रहा है, इट डजंट मैटर बॉस, ऐसा तो होता है. Correct. हर बार ऊपर से गिरेगा, गिर के उठेगा, ये सब होता है. Then you are an equity investor. Then you forget about what is happening, because in the long term nothing beats equity. Correct. Right? But if you are not in that bracket, then you just take a learning out of this whole scenario कि भाई ठीक है, अपने को ideally speaking asset allocation follow करना चाहिए, because ये जो equity का उतार चढ़ाव है, uncertainty अपन झेल नहीं पाते हैं. राइट. सो आशीष, ये जो सेशन का टॉपिक था 1 Idiot with the Masters, आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट द 1 Idiot स्टोरी. ये जो मूवी है 100 crores है. Yes. तो वी हैव टेकन दिस चैलेंज कि हमें वो रियल इडियट थी जो मूवी आई थी, हमें रियल इडियट बन के दिखाना है. 100 crore हमने खाली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बनाए हैं. आपके पास तो रिस्ट्रिक्शन है कि आप डाल नहीं सकते हो, हमारे पास चॉइस, हम डालते नहीं है. दो आई एम ए CFA चार्टर होल्डर एंड MBA फाइनेंस, बट मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स ने अगर लॉन्ग टर्म में 15-18% का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है ये इंडस्ट्री ने 25 साल में, ऑलमोस्ट बहुत सारे फंड्स ने बनाया है, तो मैं फिर अपना दिमाग क्यों लगाऊं? व्हाई टू रीइन्वेंट द व्हील व्हेन ऑलरेडी देयर आर गुड अमाउंट ऑफ पीपल हु आर डूइंग गुड जॉब. तो हम कंसिस्टेंटली SIP कर रहे हैं एंड वी हैव बीन बिल्डिंग दिस कॉर्पस, और 3-4 साल में बिफोर वी टर्न 50 द आइडिया इज टू एक्चुअली शो द वर्ल्ड. क्योंकि मैंने देखा है दुनिया में सब लोग रामदेव अग्रवाल जी को जानते हैं, राकेश झुंझुनवाला जी को जानते हैं, सब लोग उन्होंने इक्विटी से वेल्थ बनाया डायरेक्ट स्टॉक से. बट हियर वी वांट टू प्रूव कि अ कॉमन मैन लाइक अस कैन आल्सो क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ थ्रू म्यूचुअल फंड्स. Yes, absolutely. तो आपसे खाली ये सवाल पूछना था कि यू बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर 25 years. अगर जी. जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक सस्टेनेबल वेल्थ बनानी है, जनरेशनल वेल्थ नेक्स्ट 20-25 years में, व्हाट आर द 3-4 थिंग्स दे शुड बी डूइंग और नॉट बी डूइंग
to make sure that they enjoy this journey and they are actually able to create sustainable wealth? 3 or 4 things. See, first and most important thing according to me is never do anything which will throw you out of the game. ऐसा कोई रिस्क लो ही मत जो आप झेल नहीं पाओ, right? Second thing, there are no brownies for doing it fast. क्योंकि क्या है, देखिए, ये ऐसा जर्नी है, अगर आपको बोला है कि भाई जितना लंबा रहोगे, सी समझो कि गजेंद्र, इफ यू आर टोल्ड कि एक ऐसा क्रिकेट का मैच है, इसमें आपको हाईएस्ट रन बनाने का है, लेकिन इसमें 20 ओवर लिमिट वगैरह नहीं है। तो आपको बोला अनलिमिटेड टाइम है, तो 500 रन बना, अनलिमिटेड टाइम है, जितना टाइम लगता है लगा ले। तो आप सबसे पहला चीज क्या इंश्योर करोगे? मुझे जल्दी नहीं विकेट नहीं बनाना है। गंवाने का है। हाँ, विकेट नहीं गंवाने का है। करेक्ट। करेक्ट, क्योंकि आपको T20 नहीं है ना, आपको अनलिमिटेड टाइम दिया है। करेक्ट। ये गेम का एक ही रूल है, जितना लंबा पिच पे रहोगे उतना तुम्हारा ज्यादा रन बनेगा, उतना तुम्हारा जीतने का चांस बढ़ेगा। करेक्ट। ऐसा कुछ भी करोगे जिसमें तुमको पिच से आउट हो जाएगा, तो देन फिर बॉस वापस आने का मुश्किल है। सो आई थिंक देयर आर 2 रूल्स टू कीप इन माइंड। नेवर डू एनीथिंग विच विल थ्रो यू आउट ऑफ द गेम, एंड डोंट बी इन अ हरी। Understood. These two, according to me, are the most, and do everything you can do to make your journey sustainable. और ये सब sustainable journey बनाने का सबसे बड़ा enemy क्या है मालूम है? इमोशन। देखिए, लोगों की बड़ी से बड़ी गलतियां तब होती हैं जब वो लोग इमोशनल हो जाते हैं। आपको गजेंद्र, आपको, हमको, निखिल, वीरेंद्र, सबको बचपन से कितनी बार आपको बोला रहेगा, अरे डोंट गेट इमोशनल यार। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, घर पे बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, ऑफिस में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं डोंट गेट इमोशनल? क्यों बोलते हैं? Correct. क्योंकि भाई, व्हेन योर इमोशंस गेट इन्वॉल्व्ड, then you may not be able to think objectively. The biggest mistakes are made when people become emotional. तो investing में when do people become emotional? When they are exposed to extreme. अबे 1 साल में पैसा डबल हो गया, that is extreme. अरे पिछले मार्च 2020 1 महीना में 30% डाउन हो गया, that is extreme. When you get exposed to extremes is when your emotions get invoked. When emotions get invoked, you are most likely to make mistakes. So what is the golden rule? Do not do anything which will bring your emotions into question. तो इतना पैसा इक्विटी में मत लगाओ कि साला उसका डाउनसाइड आप झेल ही नहीं सकते हो, राइट? लीवरेज करके, बोरो करके पैसा लगाया है, तो टाइम लिमिट आ गया ऑटोमेटिकली, भाई पैसा रिटर्न करने का है, तो मार्केट अपने को बोल के थोड़ी बिहेव करता है यार। करेक्ट? सो टेकिंग लीवरेज, इन्वेस्टिंग इन अ वे विच यू कैन नॉट हैंडल, मतलब ऐसा, मतलब पूरा पैसा इक्विटी में लगा दिया, अभी 20% डाउन है, आई नीड मनी इन द नेक्स्ट 1 year, बट आई हैव पुट एवरीथिंग इनटू इक्विटी. I need to pay back my loans, but I put money into equity. When we do such things, right? We put, जैसा मैंने बोला कि ये सब अचार चटनी खाने का. Correct. These are the things which cause. So don't do anything. See, we all have been on a roller coaster, Gajendra, right? जब एक समझो हांगकांग का डिज्नी है, या ये अपना इधर SL वर्ल्ड इमेजिका है. When you go on a roller coaster, जब एक रोलर कोस्टर ऊपर जाता है, ऊपर 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 जाता है, राइट? When it is at the highest point, आप हांगकांग के डिज्नी में, आपको पूरा दरिया दिख रहा है, ठंडी हवा चल रही है, यू विल टेल योर वाइफ, वाओ ब्यूटीफुल डिसीजन यार, साल में एक बार अपने को आना चाहिए, अच्छा हुआ तुम मेरे को लेके आए यहाँ पे, आप बहुत खुश है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वर्टिकल फॉल. एकदम, हाँ, तभी आपका क्या इमोशन होता है? तभी कभी आपका नहीं क्या आऊंगा. इमोशन है? अरे भाई ये रुके और मैं निकलूं यहाँ से. तो मैं तुमको कितनी बार बोला है, मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है, तुम्हारे चक्कर में आया मैं इधर, अगली बार मेरे को लाना मत, अपन ही पैसा दे रहे, अपना पानी पानी हो रहा है. सही बात है. ये कब रुके और मैं निकलूं यहां से? जब आपको लगता है कि भाई धरती फटेगी, ये अंदर चला जाएगा, उसके बाद क्या होता है? फिर से ऊपर जाता है. जाता है. सो सेम वे, एक्साइटमेंट एंड फियर, ग्रीड एंड फियर, ये सब एक्सट्रीम इमोशन है. एक्सट्रीम इमोशन में गलती होता है लोगों का. करेक्ट. तो इन्वेस्टमेंट में है ना, ऐसा एक्सट्रीम पोजीशन लेने का नहीं कि जिससे अपन इमोशनल हो जाए, क्योंकि इमोशनल होंगे तो पक्का गलती होएगा. और ग्रीड और फियर नहीं, सबसे गंदा इमोशन है एनवी. अरे बाजू वाले का पोर्टफोलियो में गोल्ड है, मैं रह गया,
Hmm. There is no worse emotion than comparing your portfolio. I think It will extreme make you amount, make the biggest mistakes actually. आई थिंक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ग्रीड और फियर और एनवी में ही एक अच्छे एडवाइजर का रोल बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? आई जनरली बिलीव कि जब सब कुछ अच्छा चला तब इन्वेस्टर्स को लगता है अपन ही भगवान है, अपने खुद कर सकते हैं और जैसी टाइट टर्न होती है देन दे नो, अब उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए. Absolutely. So just now we'll take 5 more minutes with you, Ashish. Quickly we'll try and answer audience question in a rapid fire. कई लोग पूछ चुके हैं सर हमारा क्वेश्चन आप पूछ Please. पाए. Arpit has a question, sir. I have a question in relation to data shared. Can it be strategized to invest when Nifty falls by 10 to 12% in a calendar year? तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए. Brilliant question है. Brilliant question है. See, सबका SIP चलता है. जब SIP चलता है ना, SIP gives you average return. तो अर्पित साहब ने बढ़िया चीज पूछा है कि भाई हाउ विल आई गेट अबव एवरेज रिटर्न. तो क्या है कि देखिए, आपको मालूम है कि भाई अगर आपका पैसा स्मॉल कैप फंड में है तो औसतन किसी भी साल में 15-20-25% गिरता है. कारण बदलते रहते हैं लेकिन साल में एक बार गिर सकता है. तो अगर आप ऐसा रूल बना लेंगे कि भाई वैसे तो मेरा SIP चल रहा है लेकिन जब भी ऊपर के लेवल से NAV 15% नीचे आएगा ना तो मैं 2-3 इंस्टॉलमेंट और डालूंगा, तो यू विल गेट अबव एवरेज रिटर्न. अगर आप SIP चलने देंगे तो एवरेज रिटर्न आएगा. अगर आप ऐसे एक आप बांध लोगे भाई निफ्टी, अगर मेरा पैसा लार्ज कैप फंड में है 10% से ज्यादा गिरा ना ऊपर के लेवल से तो 2 इंस्टॉलमेंट डालने का. मिड कैप में 15-18% से ज्यादा गिरा तो 2 इंस्टॉलमेंट डालने का. SIP स्मॉल कैप में 25% गिरा, 20% गिरा तो 2-3 इंस्टॉलमेंट डालने का. तो you'll get above average return. I think this answers most of the questions in terms of how to manage your behavior. So I'm saying the idea is that whenever the market falls and you get panicked, this is the time you should invest more. So you're right. That is the most difficult part कि जब मनी नहीं कर रहा होता है ना तभी एक्चुअली डालने का रहता है. एक आपने देखा होगा बिहेवियर की जब बात करें, जहां दुनिया डालती है वहां मैं नहीं डालूंगा. आशीष, आज के डेट में सब लोग AI बेस्ड कंपनीज यूएस में मार्केट में डाल रहे हैं. मैक्स 7. इंडिया में तो चलो रेस्ट्रिक्शन है तो इसलिए शायद लोग नहीं डाल पा रहे हैं. अगर ये खुला होता, आप इमेजिन कीजिए RBI का लिमिट नहीं होता Yes. तो सब लोग डाल रहे होते. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कि इज दिस अ बबल एंड यू थिंक Nvidia has Hyped up, definitely. $5 trillion market cap in such a short time? And I would say it is hyped up because I mean, let's draw some parallels, very quickly. I have a Zoom call at 12:30. So but I'll quickly we'll wrap up explain we'll wrap but up I'll in 2-3 quickly minutes. explain this point. Yeah. See, actually क्या है, अगर 1999 में टेक बबल हुआ था, गजेंद्र, you will know about this, needless to say, right? Correct. अगर जब इंटरनेट का बूम आया, जब टेक बबल हुआ, इंटरनेट का जब बूम आया तो इंटरनेट का आया ना तो लोगों को लगता था कि भाई इंटरनेट मतलब हर जगह पे ऑप्टिकल फाइबर केबल लगेगा, ये मोडेम और राउटर लगेगा, नेटवर्किंग इक्विपमेंट लगेगा. तो 1999-2000 में ना जब टेक का तेजी आया ना, तो अभी जैसा एनवीडिया का हाल है वैसा तभी सिस्को का हाल था, राइट? और ऑप्टिकल फाइबर्स, ये राउटर्स, मोडेम्स, सिस्को वाज द बिगेस्ट मेकर ऑफ नेटवर्किंग इक्विपमेंट. ऐसा लोगों को लगता था कि भाई इंटरनेट है तो हर जगह पे यही होएगा. सही बात. अगर 1999 में आपको कोई बोलता कि इंटरनेट की वजह से द रियल विनर विल बी समबडी हु प्रोसेसेस योर पेमेंट्स, डिलीवर्स फूड टू योर हाउस और हेल्प्स यू टू बुक एयरलाइन टिकट्स और होटल टिकट्स, और योर इंटरनेट की वजह से स्टॉक ट्रेडिंग बढ़ जाएगा, ऐसा कोई आपको 1999 में बोलता कि दीज आर द रियल विनर्स ऑफ इंटरनेट, यू वुडंट बिलीव इट, राइट? सेकेंड थिंग, AI तो पक्का आएगा, जैसे इंटरनेट भी आया. तो इंटरनेट कब आया? 1999 में तेज हुआ. आप जब इंटरनेट रियल में हम यूज करने लगे, जब अपने फोन में आया और बाद में जियो आया, मतलब ये ब्रॉडबैंड हर जगह पे आ गया, राइट? सो AI भी आएगा, पक्का आएगा, लेकिन 2-3 चीजें ध्यान में रखिए आप. नंबर 1, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलेगा और कौन सा इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं रहेगा, यू डोंट नो. 1999 में भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ था, राइट? So which one will be productive, which one will be not productive, you don't know. उसका अडेप्शन 3 साल में होएगा या 10 साल में होएगा, you don't know, right? उसका विनर कौन होगा, that you don't know. So सेम है, मतलब AI आएगा वो पक्का बात है. उसका विनर एनवीडिया रहेगा या कोई और रहेगा मेरे को नहीं पता. मार्क जकरबर्ग है ना, 1999 में he was not even in Harvard, nobody knew him and Google was in some garage. Correct.
तो एआई का जो भी विनर रहेगा, शायद अभी वो कोई कॉलेज में पढ़ रहा रहेगा, मेरे को नहीं मालूम वो क्या करेगा। रहेगा। हाँ, बट जो मार्केट सजेस्ट करती है वही विनर रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। नॉट एट ऑल नेसेसरी। ग्रेट, थैंक यू सो मच आशीष। विद दिस वी विल लेट यू गो नाउ, बट हम आपको बार बार थैंक यू, बुलाते थैंक रहेंगे, यू। आपको बार बार बुलाएंगे थ्रू ऑनलाइन सेशन, थ्रू फिजिकल सेशंस इन मुंबई ऑल्सो, बिकॉज आपके साथ जब भी हम और हमारे इन्वेस्टर्स एंगेज होते हैं, आई थिंक एक नई उमंग आ जाती है और एक नई दिशा मिल जाती है कि हाँ कैसे हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर एबल टू कनेक्ट राइट एट द हार्ट लेवल। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक यू टुक अ ब्रिलियंट सेशन ऑन थैंक बिहेवियरल। यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक Thank यू, you. थैंक यू, Thank you, थैंक यू, Ashish, for taking the या, session. थैंक यू। थैंक यू। Great. So investors, now we have another 10-15 minutes. Entire team Etica is there. So आपको कुछ भी सवाल है, will try and answer in next 10-15 minutes. You can type your questions on the chat box. या कुछ भी जो भी है questions, anything to do with डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, बिकॉज वो हम इंडिपेंडेंटली भी आस्क कर सकते हैं। आप में से कई लोग हैं जो शायद पॉडकास्ट देख के आए हैं एंड वांट टू जॉइन अस एंड टेक आवर एक्सपर्टीज इन इन्वेस्टिंग। तो you can go to our website, send us a message, or we'll and then we'll send you a orientation video. जनरली हम ये बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टिंग इज अ मैराथन, 10-15-20 साल का गेम है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। उसमें हमने सब कुछ बताया है कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और इनफैक्ट हमारा जो मेन एज है गाइस, इट इज एक्चुअली बिहेवियरल एज, जो आज आशीष ने बताया है। हमें भी नहीं पता कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा करेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, बट हमने हमारा पोर्टफोलियो कैसे मैनेज किया पिछले 15 सालों में, हमने जो गलतियां की है वो गलतियां हम वापस नहीं करें। तो वो सारी चीजें हमने वो 2 घंटे की वीडियो में बताया कि हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे फीस अर्न करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स वी आर कंफर्टेबल टू वर्क विथ। तो अगर आप वो वीडियो देख के आप गूगल फॉर्म भरते हैं, तो फिर हम आपको वन ऑन वन रीच आउट करेंगे एंड देन विल गाइड यू। सो Uh, so, so I'll yes, take two. yeah, I'll take two please. questions. Yes. Mr. Chiranjeev has asked if I have plan of SWP once I reach financial independence, what हाँ, strategy should be used for SWP as markets will be volatile? Is that correct? सो SWP चिंतन में मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स वॉलेटाइल भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम SWP करते हैं ना, तो हमारा मेन फोकस होता है हमारा मंथली कैश फ्लोज पे, कि हमें जो 50,000 लाख रुपए चाहिए जो हमारे खर्च के लिए, वो हमारे हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपका कैपिटल ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो हमारा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और हम जब आपकी SWP प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत कंजर्वेटिव तरीके से करते हैं, ताकि हमें मालूम है कि अगर मार्केट में 15-20-25% का शॉक भी आता है तो आपको कोई हैंडल करने रिस्क मतलब डरने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल SWP कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो आने वाले 10-15 साल में, जैसे SIP का वेव आया था, SWP का आएगा। 15-20 साल पहले आप SIP करके वेल्थ बनाइए, और फिर जिंदगी के जो आखिरी 20-30 साल है जो आपको एंजॉय करने हैं, वो आप SWP के थ्रू कीजिए। I think one more point where he's trying to ask is the asset allocation, which you have answered it, that your assets will be spread across hybrid and equity fund in a combination of it, so that whenever there's a market fall, we have some allocation to that as well. सी So yeah, नहीं, 90% इन्वेस्टर्स के लिए, 95% इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन बहुत सही, बहुत जरूरी है। आशीष ने correct. अपने पूरे सेशन में बैलेंस थाली के बारे में बात की कि एक थाली में चाहे आप नॉर्थ इंडिया चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं भी चले जाओ, जब थाली खाते हो तो 5-10 आइटम होते हैं और सबका एक बैलेंस होता है, सबकी जरूरत होती है। तो हमारे पोर्टफोलियो में भी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी, डेट, गोल्ड चाहिए, तभी वो बैलेंस रिटर्न आ सकते हैं, विच इज अराउंड 10-12% एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। बहुत लोग लास्ट 5 साल में जो आए हैं ना, उन्होंने इक्विटी मार्केट्स में 20% का रिटर्न देखा है, लास्ट 1 साल में गोल्ड का 100% रिटर्न देखा है। ये सब एक्सेप्शनल होते हैं। लॉन्ग टर्म में जाके वो सब 10, 12, 13% के आसपास जाके बैठ जाते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेशंस आप लेके आएंगे तो आपकी जर्नी स्मूथ रहेगी। So in continuation to this asset allocation, what you just mentioned, Balvinder Singh ji has a question. He's saying that few of his friends हाँ, have put money into crypto, but he has still not invested a single penny though. But what is your take on it? सी क्रिप्टो फिलहाल आज की डेट में मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए गलती हमारी, मतलब मैं अपने आप को इसमें बहुत बिगिनर मानता हूँ।
और मैं एक वॉरेन बफेट का रूल फॉलो करता हूँ कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसमें फिर नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आने वाले वर्षों में समझ बढ़ेगी। दूसरा कारण, इंडिया में अभी तक क्रिप्टो सेबी रेगुलेटेड नहीं है। ईटीएफ का कोई फंड, क्रिप्टो का कोई ईटीएफ नहीं है, ये फंड नहीं है। जिस दिन अगर इंडिया में रेगुलेशन अलाउ करता है और हम सेफ तरीके से डाल सकते हैं, और अगर उस वक्त क्रिप्टो डाउन है काफी, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हैं, हम वहां डालना पसंद करते हैं जहां क्राउड नहीं डालती है, राइट। तो फिर हम ट्राई करेंगे और हमें सही लगेगा तो हम आपको भी गाइड करेंगे कि आप भी डाल सकते हो। Sure. Thank you. So one very interesting question. Sorry, I'll take this. I just Yes. got it right Yes. now. Correct. Mr. Vaibhav is asking in case of a home loan, Correct. and I think we have received this question a number of times over the past Correct. several years. Yes. In case of a home loan, is it recommended to repay the home loan with some monthly repayment, or should that amount be invested as an additional SIP? How to find the right balance? I think this is a very interesting question. What would be your take, sir? It's a very difficult question also, Chintan bhai, because it depends from person to person. जनरली हम लोग 90% इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि आप होम लोन चाहो तो प्रीपे कर सकते हो। आपको रात को नींद आती है कि नहीं आती है, इन द सेंस, अगर आपको स्ट्रेस है कि मेरे ऊपर काफी होम लोन है, मैं इंटरेस्ट भर रहा हूं, तो फिर प्लीज आप होम लोन पे कर दीजिए। बट अगर आप वो 5% माइनॉरिटी में आते हैं मेरे जैसे, जिसमें मुझे लगता है कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8% ही है, मैं अगर 5-10 साल रुकता हूं तो मेरा पैसा यहाँ 10-12-13% बन जाएगा, मैं शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हैंडल करने को तैयार हूं। और मैं जो बचा रहा हूँ होम लोन पे प्रीपे नहीं करके, उससे मैं एसेट्स ही बना रहा हूँ ना, मैं खर्चा तो नहीं कर रहा हूँ। कि So, अगर मैंने एसेट्स बना लिए तो मैं 1 साल बाद भी होम लोन प्रीपे कर सकता हूँ, 2 साल बाद भी कर सकता हूँ, 3 साल बाद भी कर सकता हूँ। तो somebody like me will not prepay the loan because 7-8% वर्सेस 12%, देयर इज अ बिग गैप। और नहीं है, बट बहुत बार हम लोग इन्वेस्टर्स को बोलते हैं जिनका 12% का लोन है, 14% का लोन है इंटरेस्ट रेट, तो हम स्ट्रेट अवे कह देते हैं कि आप प्लीज जो पर्सनल लोन है वो प्रीपे कर दीजिए। क्योंकि 12 में लोन ले रहे हो और 12 में रिटर्न आना, या 13-14% रिटर्न एक्सपेक्ट करना, ज्यादा गैप नहीं है। बट अगेन, इट्स so वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, जब तक हम personal, yes, इन्वेस्टर्स को समझ नहीं ले तब तक गाइड करना बहुत मुश्किल है। true. I agree. एनी मोर क्वेश्चन चिंतन भाई? I'm just looking the last one. So, Gokul said, Gokul Prabhu ji is, I was just about to read with a this long-term question. view, Very what should be interesting. the rice item biggest chunk in your थाली? गोकुल जी, मेरी थाली में अनफॉर्चुनेटली आई डोंट फॉलो एसेट एलोकेशन जैसे सारी दुनिया फॉलो करती है, विच इज रॉन्ग ऑल्सो इन दैट सेंस। आई एम मोर लाइक, आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट का आज 99% पैसा इक्विटी में है, तो मेरा भी ऑलमोस्ट आज की डेट में 85% पैसा इक्विटी में है, 15% कैश में है, यानी लिक्विड फंड वगैरह में है, जो इक्विटी में ही जाएगा। सो मैंने आज तक इक्विटी एसेट क्लास के अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं इसलिए आई मिस्ड आउट कंप्लीटली ऑन गोल्ड। इसलिए नहीं कि आई डोंट अंडरस्टैंड गोल्ड, बट मुझे गोल्ड 1 साल पहले भी महंगा लग रहा था, 3 साल पहले भी महंगा लग रहा था, इसलिए हमने डाला नहीं, हमारे चाहे मेरे में, चिंतन भाई, किसी में हमने डाला नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा लगता है कि एक्विटीज, सो वी बिलीव इन एसेट एलोकेशन इन द सेंस रीबैलेंसिंग। जब अगर कोई एसेट क्लास बहुत महंगी हो गई है तो वहां से निकल जाओ, जो एसेट क्लास बहुत सस्ती हो गई है तो वहां डालो। सो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो जो बहुत सस्ती होती है, तो वहां डालेंगे। बट आज की डेट में इक्विटीज है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेजोरिटी विल रिमेन इक्विटीज, चाहे वो इंडियन इक्विटीज हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, या वर्ल्ड मार्केट हो, डिपेंड करता है कौन कहाँ अट्रैक्टिवनेस लग रही है। बट इतना आप गारंटी से हमारे समझ सकते हो, जहां सारी दुनिया डाल रही है वहां हम अपना पैसा नहीं डालेंगे। बिकॉज एक चीज जो हमने सीखी है इन इन्वेस्टिंग, something which is hugely popular is rarely profitable. Oh, that's a very interesting quote, I must say. Correct. So we have finished 99% of question. One, two are little personal, so we would request you to connect with us offline, and then Yes. we can answer those queries. Right. So once again, हमने ऑलरेडी ये मैसेज में, एक सेकेंड सॉरी, मैं ये मैं डाल देता हूं आप सबको गूगल फॉर्म, इन द सेंस आई जस्ट पुट दिस थिंग, ये हमने डाला है यहाँ पे। जो भी नए इन्वेस्टर्स जुड़ना चाहते हैं, प्लीज आप ये कॉपी कर लीजिए, और आप ये हिंदी और इंग्लिश में हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, आप प्लीज उसको अटेंड कीजिए। जब तक आप ये सेशन अटेंड नहीं करते हैं, हमारे साथ बात करके, डिस्कशन करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको जब तक हमारी फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस लॉन्ग टर्म जर्नी। सो ये 2 घंटे का वीडियो स्ट्रांगली रेकमेंड आप अच्छे से देखिए। इस वीडियो पे आपको जो भी सवाल है फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, और फिर हम, अगर आप कन्विंस है कि दिस इज द वे वी वांट टू गो,
then we will connect with you and understand your requirement and then guide you accordingly. So आप ये लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद ही आप ये गूगल फॉर्म भरिएगा, उसके पहले आप गूगल फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि वी डोंट वांट टू ऑनबोर्ड रॉन्ग विद इन्वेस्टर्स विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, इसीलिए हमने ये वीडियो मेहनत करके बनाया और डाला आपके लिए. So with that, we will stop here. It's 12:30 already. और आप जिनके भी क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए हैं, कैन वी जस्ट पुट ईमेल आईडी हियर, आप मेरे को इसमें मेल कीजिए एंड विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन अगर ये आंसर्स नहीं हुए हैं. सो आई जस्ट पुट द ईमेल आईडी connect@eticawealth.com. इस पे आप अपना क्वेश्चन या आप कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड देन विल try and reply to you on this email. So with that, we will stop this session. Thank you so much for your time. I hope you really enjoyed this. And we look forward to meet you in the next session next month with another master. Tab tak, dhanyawad, and have a great weekend ahead.